गुड मॉर्निंग। आज हैं हम राजभवन पंजाब में, जहां पर कि नेशनल स्पोर्ट्स डे पर जो नेशनल प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स के, उनको यहां पे फैसिलिटेट किया जाएगा। ऑनरेबल गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जी उनको ऑनर करेंगे। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। नेशनल स्पोर्ट्स डे इस अवसर के इस आयोजन में पधारे सभी गणमान्य अतिथियों का तो हम हृदय से स्वागत करते ही हैं, लेकिन समय है आज के आयोजन के मुख्य अतिथि सभागार की ओर पधार रहे हैं। हम तालियों द्वारा उनका भव्य स्वागत करेंगे। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन माननीय राष्ट्रीय खेल दिवस का अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में सभी मेहमानों का स्वागत और सादर अभिनंदन माननीय राज्यपाल पंजाब चंडीगढ़ श्री गुलाब चंद कटारिया का सादर स्वागत। पधारे सभी गणमान्य अतिथियों का समय है राष्ट्रगान का। आप सभी से आग्रह अपने अपने स्थान पर सावधान खड़े होने का। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। 2012 से हर साल 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। इसी दिन पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने 22 साल के कैरियर में 400 से भी अधिक गोल किए। ऐसे महान खिलाड़ी को सदैव ही याद किया जाता रहेगा। 1988, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में आपने स्वर्ण पदक जीते। आज का ये दिन उनको समर्पित है और सदैव से ये प्रयास रहा है, ये उद्देश्य रहा है कि आज के दिन सभी युवा खिलाड़ी उनके जीवन से प्रेरणा लें और साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा सके। यही आज के आयोजन का उद्देश्य भी है। इससे पहले कि हम आयोजन की ओर बढ़ें, मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय श्री हरिकालिकर जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, कि वे कृपया मंच पे आए और विधिवत रूप से मुख्य अतिथि एवं पधारे सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें। Governor Punjab and Administrator UT Chandigarh, Shri Gulab Chand Kataria ji, Advisor to Administrator, Shri Rajiv Verma ji, Additional Chief Secretary to Governor Punjab, K. Shiv Prasad ji, Secretary Finance, Harbinjit Ma'am ji, Officers of Chandigarh Administration, Sports Department, friends from media, ladies and gentlemen, and my dear players. It is with great pleasure and honor that I stand before you today as the Administrative Secretary of the Sports Department, Chandigarh Administration, representing the collective commitment to the development of sports in the city beautiful. The ambience and charm which equally charms the novice, the uninitiated and the enlightened. Endowed with the finest of all-round facilities and sporting infrastructure, which is complemented by abundance of natural synergy, UT has produced an array of top-notch sportspersons who with their world-class performance have raised the tricolor higher and higher at both the national and international arenas. I extend a warm welcome to all of you. I would especially like to thank the Chief Guest, Honorable Administrator Sir, who has joined us to felicitate and inspire the young athletes who have brought laurels to Chandigarh on various national and international platforms through their dedication,
hard work, and indomitable spirit. 16. Football Center, Sector 17, Hockey AstroTurf, Sector 42, and Table Tennis Hall, Sector 23, beside others. Not only the courts, stadia, pools, and playing areas are provided to the players, these facilities have been extended to general public also. There are already 57 coaches who are working in various stadiums or centers to impart training to the players for honing their skills and abilities. Recruitment of new coaches is under process to further strengthen the department. Our sports persons are our assets, and their nurturing into world-class athletes is a part of our bonded duty. The sports policy launched on the momentous occasion of National Sports Day last year contains special features and provisions to provide a congenial ecosystem for our budding sporting talents to thrive and bring laurels to the UT at national and global competitions. खेल जरूरी है जीवन में, तन मन का करते हैं विकास, जीवन का हिस्सा बन खेल, जीवन में लाते हैं प्रकाश। तो खेल बहुत महत्वपूर्ण है। खुशी मनाने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिस पल में हमें खुशी हासिल होती है वो अपने आप में ही एक मुहूर्त बन जाता है, और वो पल आ चुका है, वो मुहूर्त आ चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। समय है माननीय मुख्य अतिथि द्वारा 15 टॉप मेडलिस्ट को कैश अवार्ड्स देने का। आज के इस पावन अवसर पर वर्ष 2013-14 से अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर खेलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को माननीय राज्य पंजाब कैश अवार्ड द्वारा नवाजेंगे। हम आग्रह करते हैं उन 15 खिलाड़ियों से कि वे क्रमानुसार कृपया मंच के नजदीक आ जाएं। कुल 311 खिलाड़ियों को आज कैश अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, जिन्हें आज 15 को यहाँ स्वयं मंच पे अवार्ड देंगे और बाकी सभी खिलाड़ियों को डिजिटली ये अवार्ड दिया जाएगा। 15 खिलाड़ी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं आग्रह करता हूँ कृपया मंच के नजदीक आ जाएं। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूँ सर, अपने शुभ हाथों से आप ये अवार्ड दें। सबसे पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाले आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं नाम पुकारना चाहूंगी। पहला नाम है गौरव। स्केटिंग के लिए आपको स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स लॉस एंजलिस में हुए 25 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2015 में फर्स्ट पोजीशन ली और आपको 10 लाख की राशि का ये कैश अवार्ड दिया जा रहा है। गौरव, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं आपके अगले भविष्य के लिए। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में पुरस्कार आपको मिला और दूसरा नाम आगे भविष्य के लिए। तीसरा पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पूनम आज किसी इमरजेंसी की वजह से यहाँ नहीं पहुँच पाई है, तो उनके कोच मिस्टर राजीव कौशल को हम मंच पे आमंत्रित करते हैं। टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस की प्लेयर हैं और हैज़ चाइना लव का नगद अवार्ड आज दिया जा रहा है। तो इंचोन साउथ कोरिया में 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2014 तक रिजर्व रोलर हॉकी में आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सेकंड प्राइज आपने लिया था 19th एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, जो कि चाइना में हुई थी 28 अक्टूबर 2023 में, और आपको हॉकी की खिलाड़ी हैं और 2023-24 में आपको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। थर्ड पुरस्कार था 19th एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, जो कि चाइना में हुई थी, उसमें आप विजेता रहते हुए उनको आपने पहली पोजीशन से पदक प्राप्त किया और आज आपको नवाजा जा रहा है। और इनाम है आशीष कुमार, रेसलिंग के विजेता 2023-24 गेम्स में गोवा से आपने पहला पुरस्कार प्राप्त किया। 5 लाख की राशि आज आपको मिल रही है। जोरदार तालियां। गेम्स में आपका द्वितीय पुरस्कार था 3 लाख की राशि आज आपको पुरस्कार के रूप में मिली है। बहुत बहुत बधाई सुमित कुमार। आगे के पुरस्कार के लिए भी मंच पे आमंत्रित है। दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की राशि, दूसरा पुरस्कार और 3 लाख रुपए की राशि आपको दी जा रही है। बहुत बहुत
बधाइयाँ। जिम्नास्टिक के विजेता द्वितीय पुरस्कार से 3 लाख की राशि आपको दी जा रही है। 2023 में 37 नेशनल गेम्स गोवा में जो हुए उनमें आपने पुरस्कार प्राप्त किया। जिम्नास्टिक में आपने दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया और 3 लाख की राशि से आपको सम्मानित किया जा रहा है। विजेता ने 37 नेशनल गेम्स में आपने गोवा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 3 लाख की राशि यूं ही निरंतर आगे बढ़ती रही और उन्होंने को प्रेरणा देती रही। अगला नाम साहिल, रेसलिंग के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तमिलनाडु में पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाले 1 लाख रुपए का आज। और अब माननीय राज्यपाल महोदय से हमारा निवेदन है कि बटन क्लिक करके सभी मेडलिस्ट को कैश अवार्ड्स प्रदान करें। जैसे ही बटन क्लिक होगा उनके खाते में जाने आरंभ हो जाएंगे। सभी आदेश को, सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत सी बधाई और शुभकामनाएं। बढ़ने वालों के लिए जीत के मौका और भी है। याद रख, तेरे हौसले की अभी इम्तिहान और भी है। जहाँ तक आकाश है वहाँ तक आपका सफर है और आप इस सफर में आगे बढ़ते जाएं, हम यही आकांक्षा रखते हैं। समय है आभार व्यक्त करने का, सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करने का। गुजारिश माननीय चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार श्री राजीव वर्मा जी से कि वे माननीय मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। उम्मीदें कायम रहे, हौसले बुलंदियों तक पहुंचे, नसीहतों का सम्मान हो, लेकिन आशीर्वाद का स्थान तो सदैव आशीर्वाद का ही है। हम सादर आग्रह करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय से कि वे हम सभी को संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें व अपना आशीर्वाद हम सभी को देंगे। खेल दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपके साथ देश के उन सब खिलाड़ियों को भी जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, की ओर से उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने परिश्रम से देश का गौरव और मान दुनिया में बढ़ाया है। आज उन सब के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता महसूस करता हूँ। धन्यवाद। चंडीगढ़ डॉक्टर शिव प्रसाद जी जो मेरे साथ सहयोगी के रूप में काम करते हैं, श्री हरिकांत IAS सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, अर्जुन जी मंच पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण और मेरे सामने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, सभी इन बच्चों को तैयार करने के लिए जिन्होंने अथक परिश्रम किया। आज वास्तव में उन खिलाड़ियों का ही सम्मान नहीं है, उनके उन कोच का भी सम्मान है जिन्होंने इन बच्चों को तैयार करके इस पोजीशन में, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ उपस्थित सभी खिलाड़ी भाई बहनों का, उपस्थित सभी अतिथिगणों का, कि आज ये वास्तव में मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि मैं आज उस धरती पर खड़ा हूँ जो हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स में अपना परचम पंजाब के साथ साथ देश का गौरव भी दुनिया में बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उस स्थान पर खड़ा होकर के मैं आज उन सब खिलाड़ियों का सम्मान करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दुनिया तब से लेकर आज तक उसके मुकाबले का कोई दूसरा हॉकी का जादूगर तैयार नहीं हो सका। इस प्रकार की जिसने कीर्ति प्राप्त की, उस जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती को
हमारे यहाँ खेल दिवस के रूप में घोषित किया है। जब हम बचपन में पढ़ते थे तब हमें लगता था कि कोई ऐसा हॉकी का जादूगर है कि उसकी स्टिक से बॉल चिपकी की चिपकी रहती है। लोग सोचते हैं कि कहीं इसमें कोई चुंबक तो नहीं लगा रखा है जिसके कारण से बॉल इसकी हॉकी से कभी अलग होती नहीं दिखाई देती और जिस प्रकार से कैरी करता हो वो आगे बढ़ता है। वास्तव में सारा देश और दुनिया उसको देख करके लगता था और इसीलिए उसका नाम हॉकी का जादूगर कहा गया। तो वास्तव में आज उनकी इस जन्मदिन पर इस देश का सौभाग्य है कि आज हम खेल दिवस के रूप में आप और हम सब और केवल चंडीगढ़ में नहीं देश के हर कोने में आज एक खेल दिवस रूप में मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आज इस दिवस को उसी रूप में मना करके केवल और केवल उन खिलाड़ियों का ही सम्मान नहीं किया, उन खिलाड़ियों द्वारा देश को मिले हुए सम्मान को 140 करोड़ जनता को उन्होंने सम्मानित करने का जो काम किया उसके लिए उन सबको उन्होंने बधाई दी। तो मैं अपनी ओर से भी उनको बहुत बधाई देता हूँ। वे एडवाइजर सर को उसके किचन में भेजकर उनका भी सम्मान करें।